I'm Avlash Rajput from Rose Public School, Sulali. So today I'm with a session that is basically in comprises of economics section, and today we are going to start a new chapter from economics, and that is about development. Okay, I hope you would already had covered your democratic politics, whatever the work related to the homework, test, and everything that has been covered. Okay, and okay, I admire your sincerity and loyalty that you had shown, especially in completion of all that tasks. So, a good show, very great going. Take care and move on with same sincerity and loyalty, and try to read and understand the concept and content. Take care. If you have any problem, as you were discussion, as you were had. But you could say that clear your queries through by calling or through messages. Okay, the same process had to be carried out. Okay, in these sessions too. Okay, till we were in the lockdown, you are continuing with it with same sincerity and with same spirit. So, okay, today we are going to start with the chapter development. Now, what is development? It is very easy to understand what is development. So everybody has, when we are just uttering the word and you are listening this word, you could easily able to understand the meaning of it. The development, basically we call it, we had make it to be easy, in an easy way it comes to us like विकास. ठीक है, तो लेकिन ये एक ऐसा एक शब्द है, it is, you can be say that it is a very complex task. It is complex because development has so many indicators that are basically supporting the term development. So for the better understanding of development, because as we are studying economics, okay, so basically development has a different indicators. There are so many indicators that are basically supports the term development, or that indicators are basic, in simple way you can say that indicators are responsible for the development. Okay, whether that process can be associated to the individual, community, nation, or in international level. Okay, so there are some fixed indicators that are basically support this term development. So that is the one thing. And it is a very complex task. It is a complex task because, why it is complex task? Because development, the concern for a development is differ from a person to person. Okay. We cannot say that every person has the same aspirations and the same ideas, or for a development you have to follow the particular way of aspirations or the particular path of desires. Okay. Every individual, every person has a different aspirations and different desires. Okay. So in the act of fulfilling that, or by the guidance of that aspirations, or to in the process to fulfill their desires, the act they are involving with, okay, that are basically led to their path to the development. And it is very complex. Why I have used the term complex? It is complex because when we are in economics, when we are going to understand the things, okay, it is very essential for us to understand the basic things that are basically connected to the term development. Now, for an example, आप विकास चाहते हैं, विकास डेवलपमेंट है, ठीक है, मतलब समझ में आ गया, लेकिन डेवलपमेंट होने के लिए आपके इच्छाएं हैं, ठीक है, धारणाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो आपको प्रगति करने की तरफ, अगर आपको विकास की तरफ लेके चलते हैं. बट अब हर एक व्यक्ति क्या एक जैसा माहौल नहीं होता है, उसकी जो एक बहुत सारी, वो एक सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन से नहीं निकल के आता है. ठीक है, there are so many things that are basically responsible for the diversification.
that are basically being traced in his ideas, in his act of working, and in his or her way of thinking. सभी का थिंकिंग प्रोसेस जो है वो अलग होता है, और सभी का थिंकिंग प्रोसेस जनरेट होता है उसकी अलग अलग पृष्ठभूमि से। ठीक है, एक व्यक्ति जो पहाड़ी इलाके में रहता है तो नेचुरली उसकी पृष्ठभूमि अलग होगी, उसके लिए चैलेंजेस, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ के जो वातावरण है, वहाँ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड होंगी। वहाँ पर वो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो वहाँ पर जिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सुधार आने की वजह से ही वो अपलिफ्ट करेगा और डेवलपमेंट करेगा, इज़न्ट इट? है कि नहीं? तो वैसे ही हर जगह हर व्यक्ति हर चीज़ का जो है उसके डेवलपमेंट का जो आधार है वो बहुत डिफर होता है, उसकी थिंकिंग, उसकी सोच। ठीक है, इच्छाएं तो होती हैं, इच्छाएं जो हैं, डिज़ायर्स जो हैं, वो बेसिकली इंसान को डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर करती हैं, लेकिन उनको वो इच्छाएं जो हैं उनकी पूर्ति होती है वो किस तरह से अब अपनी इच्छाओं को गाइड करके चल रहा है डेवलपमेंट के प्रोसेस में, वो डिपेंड करता है उसकी थिंकिंग प्रोसेस पे। ठीक है, उसका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो उन सब चीज़ों को लेके चलता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस तरह अब मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में बता देता हूँ। जैसे सपोज करो अब हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, अब हमारी कंट्री को डेवलपमेंट चाहिए, वी वांट टू बी एस्टैब्लिश्ड एज अ डेवलप्ड नेशंस अंडर इन द कैटेगरी इन द लिस्ट ऑफ डेवलप्ड नेशंस। सो फॉर दैट पर्पस, जैसे आजकल हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ बहुत ज़्यादा फेवरेबल उसमें जा रही हैं। वो माउंटेनियस रीजन थे, काफ़ी समय से नेग्लेक्टेड थे, वहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, तो वहाँ के लोग भी डेवलपमेंट चाहते हैं, दे आल्सो वांट टू हैव अ गुड एजुकेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, लेकिन अब वो संभावनाएं कैसे पूरी होंगी? संभावना अब यहाँ पे देश जो है वो वहाँ पे पैसा क्यों लगा रहे हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेसेस वहाँ पे हो सकते हैं। नाउ दे आर इन्वेस्टिंग मनी, दे आर लेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर। ठीक है, एक बार फिर वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा रहा है। अच्छा, तो उसके रिजल्ट्स जो है उनको मिलेंगे, क्योंकि जब वहाँ पे सुविधाएं जाएंगी तो लोगों का सोच का नज़रिया, लोगों के काम करने के तरीके जो हैं उनमें भी बदलाव आएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ को एक बेहतर फॉर्म में रखे, लेकिन जब उसको साथ साथ में जब उसको सुविधाएं मिलेंगी, उसको सपोर्ट मिलेगा, तो नेचुरली बात है वो अपने आप को अपलिफ्ट करेगा। ठीक है ना? तो इन अ सिंपल फॉर्म, ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो क्या है? डेवलपमेंट इज बेसिकली इट इज कंपाइल्ड विद योर एस्पायरेशंस एंड डिजायर्स। ठीक है, आपकी एस्पायरेशंस एंड डिजायर्स हैं, दे आर लीडिंग यू टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डेवलपमेंट, एंड इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग। ठीक है, योर थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि आपका थिंकिंग जो है, आपकी सोच कैसी है, ठीक है, आपकी सोच का आधार ही वो जो है वो आपकी इच्छाओं को जो है वो लेके ऊपर लेके चलेगा। आप तभी कोशिश करोगे। ठीक है ना? बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तो ये और ये सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि आपको हर एक चीज़ में वेरिएशन है, पर्सन टू पर्सन। A person either from the one profession or from the other professions, their perspectives, their desires, their aspirations are differ from each other. Is that clear? ठीक है, तो that is why it is very complex task. अब हम सभी के लिए ये नहीं सोच सकते कि नहीं यार, अब एक सपोज करो एक नेता है, ठीक है, जहाँ एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, वो अपनी प्रमोशन ले रहा है, तो वो एक और सेम वही उसकी जो ग्रोथ का लेवल है वही हम एक किसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किसान कहाँ से प्रमोशन लेगा? किसान के लिए प्रमोशन एक अलग मायना करती है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का कंसर्न जो है वो अलग है। ठीक है, उसका नेचर ऑफ प्रोफेशन अलग है। एक आईएएस ऑफिसर का नेचर ऑफ प्रोफेशन
अलग है, उसका काम अलग है, ठीक है ना। तो अब हम सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर को अगर हम एक किसान के स्टेटस से कंपेयर करेंगे तो वो सही नहीं हो पाएगा। उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस देखेंगे तो वो तो साफ साफ नजर आएगा कि काफ़ी फ़र्क है, इजंट इट। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, हमें हर एक चीज़ का, हर एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप का जो है उसकी जो एक एस्पायरेशंस एंड डिज़ायर्स हैं, हमने डेवलपमेंट को उनकी एस्पायरेशन डिज़ायर के हिसाब से देखना है, ठीक है। जैसे अब आप एक स्टूडेंट हैं, आपके लिए डेवलपमेंट क्या है? आपके लिए डेवलपमेंट ये है कि आपका टाइमली स्कूल लगे, रेगुलरली टीचर्स आपकी क्लास में आ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो, आपके टाइमली टेस्ट वगैरह हो, आपकी टाइमली नोटबुक्स चेक हो, आपके टाइमली एग्ज़ाम्स हो, और आपकी असेसमेंट बिल्कुल अच्छे ढंग से हो, सो दैट यू वुड एबल टू स्कोर गुड मार्क। जब आपकी स्कोर अच्छे करेंगे, परसेंटेज हाई होंगी, नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। आपका नॉलेज, आपकी एस्पिरेशंस, आपकी इच्छाएं, या आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, और इस तरह से आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करोगे। यू विल बिकम अ फुल ह्यूमन पैकेज, कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो एक स्टूडेंट के लिए क्या है, वो उसका अच्छे मार्क्स लेकर आना, अच्छा करेक्टर होना, ये एक स्टूडेंट की डेवलपमेंटल गोल है। एक स्टूडेंट जो है, अगर उसका एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, उसका अच्छा करेक्टर है, तो ये उसका मतलब उसके एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसके लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, इजंट इट। अच्छा, सेम वही चीज़ अब एक किसान की बात करो। सपोज करो एक फार्मर है, ठीक है। अब मैं आपको बड़े इजी फॉर्म में बताता हूँ डेवलपमेंटल प्रोसेस का, अब शायद आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ आएगा थोड़ा सा। मान लीजिए एक किसान है, वो मानसून के ऊपर डिपेंड है। सदियों से किसान जो है मानसून के ऊपर, बारिश होगी तब वो खेती कर पाएगा, ठीक है। अब बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई तो खेती अच्छी होगी। अब हो सकता है किसी साल मानसून अच्छा ना पड़े तो वो सेटबैक लग गया, पीछे हो गया ना। लेकिन अगर अब उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस में, अब अगर गवर्नमेंट उसको ट्यूबवेल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा देती है, उसको इरिगेशन फैसिलिटीज मिल जाती है, कैनल कंस्ट्रक्ट करवा दिए जाते हैं, ट्यूबवेल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, बोरिंग करवा दी जाती है, ठीक है। तो क्या हो गया, अब उसको मानसून के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो नेचुरली बात है कि क्या करेगा वो, यानी कि अब उसका पहले से क्या है, अब उसका डेवलपमेंट प्रोसेसेस बढ़ा ना, इजंट इट, ठीक है। तो वो एक अच्छे ढंग से अब उसकी इनकम टाइमली आएगी। जब उसको एक फिक्स इनकम आनी शुरू होगी तो नेचुरली वो उसका इन्वेस्टमेंट जो है अपने बच्चों के ऊपर करेगा, उनकी एजुकेशन पे करेगा, अपनी बहुत सारी अपनी फैसिलिटीज़ जो हैं, ठीक है, उनको अरेंज कर पाएगा। सो दैट इज़ हाउ। तो यानी कि यहाँ पे डेवलपमेंट कब हुई, जब उसको उसकी जो डिपेंडेंसी थी उसको ख़त्म किया गया। उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी, मानसून्स के ऊपर। अब मानसून्स तो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता कि वो कान से पकड़ के उसको बोलेंगे हाँ भाई तू अब आज ही बारिश कर, किसान रेडी है, ठीक है। यू कांट डू इट, ठीक है। और किसी समय ज़्यादा होगी, किसी समय कम भी होगी, कई बार सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि आप मौसम के ऊपर डिपेंड हो एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन जब आपके पास एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं, कैनल इरीगेशन हैं, ट्यूबवेल फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं, हर एक चीज़ है, तो नेचुरली वाला यू आर कम्प्लीटली नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेदर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एक ये हो गया। उसी तरह से अगर अब ये किसान का डेवलपमेंटल गोल है, किसान के लिए डेवलपमेंटल गोल यही है। तो किसान के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है, हर किसान क्या सोचता है, यार मेरे को ट्यूबवेल फैसिलिटी मिल जाए, यार मेरे को इरिगेशन की फैसिलिटीज मिल जाए। किसान के लिए अब किसान बीमा योजना, किसान सम्मान योजना, ये ऐसी योजनाएं क्यों चलाई जा रही हैं, जस्ट टू सपोर्ट देम। पेंशन योजना, सो दैट उनकी बुढ़ापे में जो एक इनसिक्योरिटी होती है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या है, वो उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस बढ़ रहा है, उसका इस प्रोफेशन में जो है उसका विश्वास जो है वो तभी बढ़ेगा। अब हम बोलते हैं कि आज की जनरेशन जो है वो खेती में नहीं करना चाहती, तो खेती क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि खेती में इनसिक्योरिटी ज़्यादा थी। लेकिन जब ये पेंशन योजना, ये बीमा योजना, लोन फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़, ये बहुत सारी जो मॉडर्न वे ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो यंग जनरेशन, आज की यंग जनरेशन जो है, देखिए आपके सामने बहुत सारे लोग जो हैं वो खेती कर रहे हैं। अब नाउ दे वर जस्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स डूइंग दिस प्रोफेशन।
सो दैट इज हाउ द थिंग्स गोट टू बी हेल्ड सेम। लेकिन ये किसान के लिए ये डेवलपमेंटल ये एस्पिरेशंस किसान की हैं, इच्छाएं किसान की हैं, और ये डेवलपमेंटल गोल्स किसान के लिए। अब ये गोल्स जो हैं, these are not similar to the students, these are not similar to the girls। और समझ लीजिए एक लड़की है, अब लड़की के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होंगे, लड़कियों के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होंगे कि मुझे भी समानता का अधिकार होना चाहिए, मुझे भी लड़कों की तरह हर प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, मुझे भी आर्मी ज्वाइन करने का हक होना चाहिए, मुझे भी नेवी फोर्स में जाना चाहिए, मुझे भी एयर फोर्स ज्वाइनिंग करनी चाहिए, मुझे भी पुलिस सर्विसेज में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, जब ये फैसिलिटीज लड़कियों को भी मिलेंगी तो लड़कियों के लिए वो डेवलपमेंटल गोल हो गया, इजंट इट, है ना। जब ये फैसिलिटीज मिलेंगी तो, अगर नहीं मिलेंगी तो समझो वो रिजर्व रहेगी, वो पीछे रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब सेम, अब देखो यहाँ पे दोनों कंडीशंस में अलग अलग है, लड़कियों की कंडीशन अलग है, किसान की अलग है, दोनों के अलग एस्पिरेशंस डिजायर्स अलग है। सिमिलरली अब उसी तरह से अगर आप देखें, एक मजदूर है, वो रोज मजदूरी करता है तब उसको दिहाड़ी मिलती है। अब एक मजदूर है, अब मजदूर जो है अब रोज जा रहा है, वो सुबह जाता है, उसको दिहाड़ी मिल जाती है, अगर काम मिल जाता है तो उसको दिहाड़ी मिल रही है। अब शाम को, अब उसको ये नहीं पता कि अगले दिन उसको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो जो पैसे होंगे वो एक इनसिक्योरिटी में रहेगा, तो उसकी लाइफ जो है वो क्या होगी, अनफिल्ड रहेगी, इम्बैलेंस क्रिएट होता रहेगा। वो डर के मारे अपनी उस इन्वेस्टमेंट को जो है ना तो अपने बच्चों के ऊपर लगा पाएगा, ना अपनी बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर पाएगा, ठीक है। तो वो जहाँ है वो वहीं का वहीं रहेगा, उसकी स्थिति जो है वो शायद बद से बदतर होती जाएगी। लेकिन इसी चीज को खत्म करने के लिए मनरेगा इंट्रोड्यूस की गई है। गाँव वगैरह, हमारे कंट्री विलेजेस का, गाँव का देश को माना जाता है ना, वी आर कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन एग्रो सेक्टर, तो इसीलिए मनरेगा इंट्रोड्यूस की गई, सो दैट एटलीस्ट 100 डेज सभी को मिलेंगे। क्योंकि जो लोग खेत गांव में रहते हैं, अगर उन्हें 100 दिन काम मिल रहा है, वो निश्चिंत है, उनका जॉब कार्ड बना हुआ है, यानी कि उनको पंचायत ने उन्हें काम देना है, वो निश्चिंत है ना। तो अब क्या कर रहे हैं वो, अब जब वो निश्चित है तो सीजन, जब फसल का सीजन है तो वो फसल कटाई में जुड़ जाते हैं, उसके बाद वो दिहाड़ी वगैरह लगा देते हैं। तो इससे क्या हो, उनकी सारी की सारी चीज़ें जो है उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनके बच्चे स्कूल्स में भी जा रहे हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें उनको फैसिलिटेट हो रही हैं, तो इससे उनके डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो अचीव हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ द डेवलपमेंट इज सेट फॉर डिफरेंट पर्सन्स। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल जो है, उनकी जो एस्पिरेशंस होती हैं, डिजायर्स होती हैं, वो डिफर होती हैं, दैट इज वाई इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। और इसीलिए सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। घर में एक बुजुर्ग है, उनकी थिंकिंग अलग होगी डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है। अब सपोज करो अगर आपके घर में कोई पेंशनर है तो उनकी थिंकिंग क्या होगी, यार मेरी पेंशन अब बढ़ती है, मेरे को गवर्नमेंट डीए वगैरह दे दी है, अब मेरी पेंशन बढ़ेगी नहीं बढ़ी, है कि नहीं, उनका एक्सपेक्ट होगा। अगर कोई एक, अब जैसे कोई फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, अब जैसे आजकल देख रहे हैं लॉकडाउन चला हुआ है, तो जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो सभी ये सोचे पता नहीं यार हमें सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं लॉकडाउन खुलने के बाद हमें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, isn't it? So ये जो अनसर्टिनिटी है, ये चीज़ें जो है ये डेवलपमेंट को सपोर्ट। अब इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज दी, बहुत सारे एक सपोर्टिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड किया, ठीक है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स गॉट टू बी अरेंज, ठीक है। डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल बेसिकली डेवलपमेंटल जो है, डेवलपमेंट टर्म्स जो है वो बेसिकली मोटिवेटेड होती है आपके एस्पायरेशन और डिज़ायर से, और आपके एस्पिरेशन और डिजायर्स जो है वो दैट इज कम्प्लीटली लेड बाय योर थिंकिंग। आपका सोच जो है, अब आप पढ़ते हैं, कई कुछ बच्चे पढ़ते हैं वो सिर्फ स्कोरिंग के लिए पढ़ते हैं, यार मुझे फर्स्ट ही आना है बस, ठीक है। कुछ होते हैं वो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी स्कोरिंग हाई नहीं होती है लेकिन उनका नॉलेज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ द एवरी पर्सन हैज अ डिफर इन देयर approaches and they all have a different set of developmental goals, so that is why it is said to be a very complex task, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है इस चीज़ को, जैसे मैंने बताया, अब आप अपनी आज
आज आप इसका फ्रंट पेज पढ़ना, इस चैप्टर का रीडिंग करना, और उसके बाद आप जो है सिंपली अपनी सराउंडिंग में, आपके पास 2 दिन है, 2 दिन है, आप सराउंडिंग में देखना कि कौन कौन से, आप अलग अलग कैटेगरी के व्यक्तियों को देखना और ये एज्यूम करने की कोशिश करना कि इसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, इनका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, ठीक है, इनकी एस्पायरेशंस क्या हो सकती हैं, इनकी थिंकिंग क्या हो सकती है. Got it? So just trying to make it understandable that how the different thinking are correlating with the aspirations and desires that are basically putting them towards the developmental reaches. ठीक है? So thank you very much. आज के लिए इतना ही.